Welcome to my channel Math World. If you like my video, please subscribe it. In this video, I am going to explain what is subset, some subset of real number, interval and universal set. So let's come to the point. Subset. अगर A और B दो सेट हो and every element of A belongs to B, then we say A is subset of. Mathematically, we denote subset like this. This means A is subset of B. In the other word, we can say that A is subset of B if any A belongs to A, this implies A belongs to B. अगर A का कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स करेगा B में तो हम कहेंगे सबसेट. If A is subset of B and B is subset of A हो, this implies and implies A equal to B हो. Implies and implies का मतलब है कि दोनों तरफ से. इस सेंटेंस का मतलब हुआ A is subset of B and B is subset of A, तब A equal to B होगा. एंड अगर A equal to B है तो इसका भी मतलब हुआ कि A जो है सबसेट है B का एंड B जो है वो सबसेट है A का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर A हमारा हो 1 2 3 एंड B हमारा हो 1 2 3 4, तब हम कहेंगे कि A जो है सबसेट है B का, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A 1 2 3 बिलोंग्स कर रहा है B में. ठीक है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगर A हो हमारा 1 2 5 एंड B जो हमारा हो 1 2 3 4, तो हम कहेंगे कि A सबसेट नहीं है B का. क्यों? Why? Because here 1 belongs to B, 2 belongs to B, but 5 is not belongs to B. Since 5 is not belongs to B, but 5 is member of A. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. सबसेट ऑफ रियल नंबर. Subsets of real number. The set of real number is denoted by R. The set of natural number is denoted by N. Set of natural number. Set of rational number is denoted by Q. Set of integer is denoted by Z. Right? Here it is obvious that the set of natural number is subset of the set of real number. The set of rational number is also subset of the set of real number. Set of integer is also subset of set of real. The set of natural number is subset of the set of rational number. The set of natural number is also subset of the set of integer. And the set of integer is also subset of the set of rational number. From above, we can conclude that N is subset of Z, Z is subset of Q, Q is subset of R. Right? Now come to the next point, interval. Three types of interval. First is closed interval. Closed interval contain all the element between A and B, also include A and B. So we can write this in set builder form like this. X belongs to real number and A is less than equal to X is less than equal to B. Second form of interval is open interval. This contains elements between A and B. This is not contain A and B, only element between A and B. So we can write this
like this: x such that x belongs to real number and a is less than x is less than b. Third form of interval is closed as well as open interval, like this. This interval contains all the elements between a and b also contain a, because here it is closed at end. So we contain a as well as all the elements between a and b, not containing b. We can write like this. Another kind of closed as well as open interval is a is closed. Since it is closed at the end of b, so it contain b but not contain a, and all the element between a and b. So we can write like this: x such that x belongs to real number and a is less than x is less than equal to b. Now come to the next point: universal set. In particular context, we talk about elements and subset of a basic set which is relevant to that particular context. This basic set is called universal set. We can also say that universal set is the biggest set in that particular context. Universal set is denoted by U, and all its subset is denoted by capital letter ABC, like this. And universal set. If we talk about number, then R may be our universal set. For example, if we talk about two sets, A and B, then our universal set may be A, B, C. Maybe our universal set. Both can be universal set of A and B, because A and B is subset of this universal set, and A and B is also subset of this universal set. So this can be universal set for A and B. So now come to the exercise question. In the first question, we have to fill symbol of subset or not subset in blank space. So our first question is, लेट कर लेते हैं कि A जो है हमारा पहला सेट हो, तो क्या हो जाएगा 2 3 4, एंड B जो है हमारा दूसरा सेट हो तो 1 2 3 4 4 5. Here it is clear all the element of A is belongs to B, right? So A is subset of B. Second question, पहला सेट को A मान ले तो हमारा हो जाएगा ABC, एंड दूसरा सेट को B मान ले तो हमारा हो जाएगा BCD. Here A is not belongs to B, so A is not subset of B. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का पहला सेट है x such that x is a student of class 11 of your school. तो ये मान लेते हैं है x such that x is a student of दूसरा सेट है x such that x is a student of your school. Here clearly all the student of class 11 is also a student of school. So all the element of A is belongs to B. So A is subset of B. फोर्थ में हमारा पहला सेट को A मान लेते हैं और फोर्थ में पहला सेट क्या है x such that x is circle in plane. x such that x is circle in plane. और हमारा दूसरा सेट है x is a circle in the same plane with radius 1 unit. दूसरा सेट है वो मान लेते हैं B. तो एक बात बताइए,
यहाँ से पहला सेट कह रहा है कि एक प्लेन का, कोई भी प्लेन ले लेते हैं, उस पे जितना भी सर्कल बनेगा वो सब जो है इसमें ए में, ठीक है। और बी जो है कोई पार्टिकुलर का बात कर रहा है कि सर्कल का रेडियस जो हो 1 हो, 1 यूनिट होगा तभी होगा। तो बी क्लियरली हियर छोटा है और ए बड़ा है, राइट। तो बी में कम एलिमेंट है, ए में ज़्यादा एलिमेंट है। तो क्लियरली कुछ एलिमेंट जो होगा ए का वो बी में नहीं होगा। दूसरी तरह से इस तरह से भी देख सकते हैं कि ए में सारा सर्कल है, बी में ओनली 1 रेडियस वाला जो सर्कल है वही है। तो क्लियरली ए का बहुत सारा सर्कल जो होगा वो बी में नहीं होगा। तो इसलिए ए जो है सबसेट नहीं है बी का, राइट। फिफ्थ नंबर, हमारा फिफ्थ नंबर है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। पहला सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। एंड दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक्स सच दैट एक्स रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो पहला सेट में जितना भी ट्रायंगल बनेगा एक प्लेन में वो सारा है, ठीक है। दूसरा सेट में हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जितना भी बनेगा वो सारा। तो हियर क्लियरली एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। हमारे 6 नंबर क्वेश्चन में पहला सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। पहला सेट को ये मान लेते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। और हमारा दूसरा सेट है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए। तो इसमें जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा वो सारा ए में है, और जितना भी ट्रायंगल बनेगा वो सारा बी में है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट ट्रायंगल के सेट का ही पार्ट है, राइट। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू बी एंड सो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला सेट को मान लेते हैं ए। पहला सेट हमारा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन। और दूसरा सेट है मान लेते हैं बी, तो है क्या है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज एन। obviously all the element of A is belongs to B, so A is subset of। now come to the next question। हमें सेकेंड क्वेश्चन में एग्जामिन करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो का फर्स्ट नंबर है ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी इज इन दिस सेट, so clearly it is subset of this set, so it is false। Similarly in second the set A ही है, दिया हुआ है कि सबसेट है इसका x such that x is a vowel, vowel है। तो इसका क्या मतलब हो गया A E I O U, obviously A belongs to this set and so it is true, right। तीसरा हमारा से है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5, राइट। यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो 2 इज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 5, so it is not subset and it is false। फोर्थ नंबर है सबसेट ऑफ ABC, obviously there is A, here it is A, so it is true। फिफ्थ नंबर है A is belongs to ABC। यहाँ जो है ये सेट जो है पूरे एलिमेंट के रूप में लिख रहा है,
ठीक है, ये ए एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे सेट को एलिमेंट की बात कर रहा है। तो ये इसमें है नहीं, इस सेट में एलिमेंट ए है, इस सेट में एक सेट जो एलिमेंट ए को कंटेन कर रहा है वो नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ओनली ए है। ठीक, तो इसे कहेंगे फॉल्स है। 6 नंबर, x such that x is an even natural number less than 6 subset of x such that x is a natural number which divide 36। क्या है कि x such that x is, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, इवन नेचुरल नंबर। तो 2 4 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन कह रहा है, सबसेट है किसका, एक नेचुरल नंबर जो कि डिवाइड कर रहा है 36 को। तो 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, 5 नहीं 6 डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से जो सब डिवाइड करेगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ क्लियरली 2 और 4 है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। तो थर्ड का ये दिया हुआ है कि 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 ये सेट है, ये एक एलिमेंट है, और 5 इतना ही एलिमेंट। हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है कि 3 4 कंटेन करता हुआ सेट जो है सबसेट है ए का, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ना तो 3 लाइज कर रहा है ए में, ना ही 4 लाइज कर रहा है, राइट। 3 और 4 कंटेन करता हुआ एक सेट लाइज कर रहा है, 3 4 एलिमेंट नहीं लाइज कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि 3 4 लाइज कर रहा है, अभी तो बताए 3 4 कंटेन करता हुआ एक सेट लाइज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड नंबर, एक सेट जिसमें 3 4 कंटेन करता हुआ सेट उसका एलिमेंट हो वो ऑब्वियसली हियर एक ही एलिमेंट है 3 4 लाइज कर रहा है ए में, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ नंबर, 1 इज लाइज इन ए, ऑब्वियसली 1 इज लाइज इन ए, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ नंबर, 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये 1 जो है एलिमेंट है, एक सेट नहीं है, सबसेट की बात ही नहीं हो, तो ये फॉल्स। 6 नंबर कहता है कि 1 to 5 सबसेट है ए का, ऑब्वियसली 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, तो इट इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू। 7th नंबर, एक सेट जो 1 to 5 को कंटेन करता है वो लाइज करता है ए में, नहीं 1 to 5 एलिमेंट लाइज कर रहा है, एक सेट नहीं लाइज कर रहा है, तो ये फॉल्स है। 8 नंबर, 1 to 3 कंटेन करता हुआ सेट सबसेट है ए का, क्लियरली हियर 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, so it is not subset, so this statement is false। 9 number, 5 belongs to a, clearly here 5 is not member of a, right, so it is false। 10th number, 5 is subset of a, obviously 5 has no member, no any element, so it is obviously a subset of a, so it is true। 11th number क्या है, 5 कंटेन करता हो एक सेट, तो ए का सबसेट है कि नहीं, ऑब्वियसली ये सबसेट नहीं है, ये फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये नहीं बिलोंग्स कर रहा है ए में, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एलिमेंट हुआ ये लाइज नहीं कर रहा है इसमें ए में, राइट, मतलब आई जो है लाइज नहीं कर रहा है ए में, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। तो फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ए का कौन कौन सा सबसेट होगा,
फाई और ये खुद सेकेंड का ए बी का सबसेट होगा पहला फाई, तब ए कंटेन करता हुआ, एक एलिमेंट कंटेन करता हुआ, तब दो एलिमेंट कंटेन। थर्ड में है 1 2 3, तो इसमें होगा सबसे पहले फाई के बाद एक एलिमेंट कंटेन करता हुआ, अब दो एलिमेंट कंटेन करता हुआ, उसके बाद तीन एलिमेंट कंटेन करता हुआ। फोर्थ में है फाई, फाई का सबसेट ओनली फाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ है और उसे इंटरवल में लिखना है। तो फिफ्थ का पहला क्या है कि x such that x belongs to real number -4 is less than x is less than equal to 6। तो -4 एक्सक्लूडेड है, -4 एक्सक्लूडेड है, सो ओपन इंटरवल, एंड 6 इंक्लूडेड है, सो 6 पे क्लोज। सेकेंड है x such that x belongs to real number and -12 is less than x is less than 10। तो -12 जो है एक्सक्लूडेड है एंड -10 भी एक्सक्लूडेड है, तो ओपन इंटरवल। थर्ड x such that x is belongs to real number and 0 is less than equal to x is less than 7। 0 included है, so closed interval, and 7 is excluded, so open। फोर्थ नंबर है x such that x is a real number, 3 is less than equal to x is less than equal to 4। real number and 3 is less than equal to is less than equal to 4, so 3 is closed because here included है और 4 भी इंक्लूडेड है, सो क्लोज्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आ जाते हैं, 6 का पहला नंबर है कि -3 और 0, इसको क्या लिखेंगे, x such that x belongs to रियल नंबर, और -3 भी ओपन, 0 भी ओपन, तो कहेंगे एंड -3 is less than x is less than, सेकेंड में है क्लोज्ड है 6 और 12 क्लोज्ड है, तो x such that x belongs to real number and 6 is less than x is less than equal to x is less than equal to 12। थर्ड में 6 में ओपन है और 12 में क्लोज्ड है, तो हम लिखेंगे x such that x is real number belongs to real number and 6 is less than x is less than equal to, क्लोज्ड है 12 पे, तो 12। फोर्थ नंबर -23 पे क्लोज्ड है, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और 5 पे ओपन है, तो लेस देन हो जाएगा। तो x such that x belongs to real number and -23 is less than equal to x is less than 5, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें 7th नंबर में प्रपोज करना है एक यूनिवर्सल सेट को। हमारा फर्स्ट सेट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड सेकेंड सेट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो बड़ा सेट होता है, तो ये दोनों सेट से बड़ा सेट कौन सा होगा इसी कंटेक्स्ट में, तो हमारा बड़ा सेट होगा द सेट ऑफ ट्रायंगल। सेट ऑफ ट्रायंगल्स में कंटेन करेगा द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इट इज यूनिवर्सल सेट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 8th नंबर क्वेश्चन में 3 सेट दिया हुआ है और कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट फ्लोइंग सेट में से चूज करो। तो हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो कंटेन करते हैं सारा छोटा सेट। हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ABC
किस सेट का सबसेट है। तो पहला की बात करते हैं अगर हम, तो फर्स्ट में हमारा है 0 1 2 3 4 5 6, राइट। हियर A इज सबसेट है, B ऑल्सो सबसेट है, बट नॉट सबसेट है C। C सबसेट नहीं है क्योंकि 8 नहीं लाइज कर रहा है किसमें, इस सेट में 8 लाइज नहीं कर रहा। फर्स्ट नंबर यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। सेकेंड की बात करते हैं, ना A फाई का सबसेट है, ना B फाई का सबसेट है, ना C फाई का सबसेट है, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। तीसरा हमारा सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि इसका सबसेट A है, इसका सबसेट B भी है और इसका सबसेट C भी है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। फोर्थ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7, क्लियरली 0 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो इसका सबसेट ही नहीं है, so it is not universal set. Thank you for watching my video. Please subscribe it.